Let's see. Let the voltage in an AC circuit is represented by equation. Let's the voltage in an AC circuit is represented by the equation V is equal to 220 root 2 sine 314t minus 5. Okay. And friend, in this question, he has given calculate. This is the voltage equation. This much volt. Okay. And it advanced. It is asking calculate number one peak and RMS value of the voltages. Peak and RMS value of voltages. Peak and RMS value of voltages. Number B, average voltage. Number C, frequency of AC. Number C, frequency of AC. Just use that to calculate all those values. Students, what is the general equation for voltage? V is equal to V naught. Sine omega t minus phi or plus phi depends on lag and lead. Okay. So students, this is the normal expression, and V naught is what? V naught is the peak. V naught is the peak value. So peak हाँ value is equal to how much here? 220 root 2. अगर root 2 का वैल्यू root 2 है, अगर root 2 का वैल्यू डाल देंगे 1 point, so we'll get it. 14 So 311 volt. We'll get it at 311 volt. And Vrms is equal to V max by root 2. That is V naught by root 2. By dividing, you could get Vrms is equal to how much? 220 root 2 by root 2. By dividing, by how much you will get? 220 volt. And in case of AC, V average. V average is equal to, the formula 2 V naught, 2 V max or 2 V naught by pi. So that is 2 by pi, and V naught we got as 311. So by solving this, you will get 198.17 around volt. This is the average value of AC. And today is asking about frequency. Since you see here omega t minus pi, so in place of omega t there is 314. Student, as we will go, omega is equal to 2 pi by t, theta by t. So that is also we know 1 by t is frequency 2 pi f. So that means here 2 pi f is equal to given how much? 314. F is going to be how much? 314 divided by 2 into pi, that is 3.14. So that is near about 50 hertz. So we got the necessary result. Students, a current is made up of, it is given, a current is made up of two components, a DC component and AC component, right? A current is made up of, a current is made of two components, a DC component that is I1 is equal to 3 ampere, and an AC component, and an AC component that is I2 is equal to 4 root 2 sine omega t. 4 root 2 sine omega t. Find the reading of the hot wire ammeter. Find the reading of hot wire ammeter. Find the reading of hot wire ammeter. Students, hot wire ammeter कौन सा value read करता है? You know that. Then what is the value of what is RMS voltage? What is the definition of RMS voltage?
Friends, RMS वैल्यू क्या है? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। और इसको और एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट। RMS value is the direct current which produces same heat in a resistance as produced by AC in the same resistance value during the same time. तो स्टूडेंट हमारे जो अमीटर वोल्टमीटर होते हैं ना, दे रीड RMS वैल्यू ओनली। RMS वैल्यू मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। एंड स्टूडेंट एसी जो है ना, वो सिर्फ वी कैन मेजर इट बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स और हॉट वायर वोल्टमीटर्स बिकॉज द हीट जनरेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो लेट्स सी, हॉट वायर एमीटर के बारे में पूछा है तो हम आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। स्टूडेंट टोटल करंट जो है वो कितना होगा, I1 प्लस I2, बिकॉज दो कंपोनेंट है करंट की। सो अगर I1 की बात करें 3 एम्पियर प्लस 4√2 साइन ओमेगा टी। सो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ऐसे हम डिराइव किए थे फॉर्मूला, बाय टोटल टाइम पीरियड 0 to t dt। करेक्ट, तो चलो उसको डालते हैं। सो 3 प्लस आई जो है वो टोटल कितना है, 3 प्लस 4√2 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, करेक्ट, dt। और लिमिट ले लिए 0 to t थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल, और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज टोटल टी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सॉल्व करके, तो आई आर एम एस का स्क्वायर जो है 1/t बाहर आ गया। अभी इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to t। ठीक है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर कर देंगे स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो इट विल बी 9 प्लस 24√2 साइन ओमेगा टी प्लस 32 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद उसका वैल्यू 0 to t डालिए। ठीक है, और and you will get IRMS putting all the respective values, you get IRMS is equal to how much, 5 ampere। तो ठीक इस तरह अगर और एक क्वेश्चन इसी टाइप का दिया रहेगा कि इफ ए डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू, मान के चलो उसका वैल्यू जो है वो ए एम्पियर है, लिख दो। इफ ए डायरेक्ट करंट, इफ ए डायरेक्ट करंट of value a ampere, of value a ampere is superimposed on an alternating current, superimposed on an alternating current, superimposed on an alternating current, दैट इज जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वो वहां पर कुछ फिक्स अमाउंट था ए एम्पियर, और यहाँ पर और एक करंट जो सुपर इम्पोज हो रहा है दैट इज बी साइन ओमेगा टी। इस तरह कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट? दैट मींस स्टूडेंट, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू, इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। दैट मींस स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो यू कैन सी हियर, ये डीसी है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट, दिस इज करंट एंड द मैग्नीट्यूड इज ए, और ये टाइम के साथ ऐसे जा रहा है। अगर एसी की बात करें, सो एसी इज समहाउ लाइक दिस, बी साइन ओमेगा टी है ना, सो दैट इज एसी, इज ये आई इस एक्सिस पे और यहाँ पर करंट। ठीक है, जो भी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी साइन मतलब पीक वैल्यू इज बी, करेक्ट, दिस वैल्यू इज बी, और ये साइन ओमेगा टी की तरह वेरी कर रहा है। तो जैसे हम निकाले पहले केस में, आई इज इक्वल टू कितना, आई डी सी प्लस आई ए सी, सो दैट इज ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। इस तरह के कुछ केसेस आपको मिल सकता है। स्टूडेंट इफेक्टिव वैल्यू जब हम निकालते हैं, so I effective, you know, that is equal to what? I effective value is equal to, students, you know, I square dt। ठीक है,
इंटीग्रेशन 0 to t, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जैसे हम किए थे dt 0 to t एंड दैट इज होल रूट ओवर, और उस साइड पे हम स्क्वायर कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे। पूरा को सॉल्व करना है हमें, फिर जाके आई इफेक्टिव निकल जाएगा। अगर हम आई इफेक्टिव निकालें फिर भी, सो आई इफेक्टिव इज गोइंग टू बी हाउ मच स्टूडेंट, 1/t आ गया, ठीक है। 0 to t अगर दोनों को मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2b साइन ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया ये, ठीक है। का दिस मच इनटू dt, ठीक है। और इसका फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 1/2। यानी नो स्टूडेंट, अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी साइन वेव जो होता है ना, तो 1/t 0 to t साइन ओमेगा टी, अगर मैं साइन ओमेगा टी को 0 to 2 से इंटीग्रेट करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा, नो डाउट। ये फुल साइकिल, साइन को अगर पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा फुल साइकिल पे 0 to t के, तो वो 0 आ जाएगा उसके फिर, ठीक है। और स्टूडेंट अगर दूसरे में देखें कि बहुत सारे टर्म्स है जो कैंसल आउट हो जाएगा, 1/t 0 to t, सो दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ये साइन स्क्वायर है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, आप हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन पे ये आने वाला है, मतलब ये साइन ओमेगा टी होगा तो वहां पर दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप 0 डाल सकते हो। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt जो है वो हाफ है, ये दोनों अगर डाल दोगे तो बहुत सारे केसेस पे आपको आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 भी रहा ना, तो साइन ओमेगा टी dt 0 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर बी स्क्वायर को बाहर ले लूं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले में क्या लिखूंगा मैं, व्हाट आई विल राइट इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। बस। सो अगर वो दोनों वैल्यू याद रखना तुरंत, क्योंकि थोड़ा ना आप वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिराइव करोगे, ठीक है। क्या करना है आपको, तो आई इफेक्टिव जो है वो वैल्यू डालने के बाद कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर टू द पावर हाफ, just right. First, let's use a phasor diagram to represent the sine waves in the following figure. Okay, so let's do the phasor diagram. Let ये एक phasor diagram ऐसे निकला, it is like that. Let's take another phasor diagram जो कि 60 डिग्री के बाद it came up to 60 degree. Let's take another phasor diagram that came 45 degree before. That came somehow 45 degree before. जो भी, ठीक है। So इसका जो मैग्नीट्यूड है 5, let's see 3 phasor diagrams. इसका जो मैग्नीट्यूड है 5 है, और इसका भी मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा ले सकते थे हम, क्योंकि इसका ही मैग्नीट्यूड, बट हम फेजर डायग्राम पे मैग्नीट्यूड से ज्यादा हम एंगल की ऊपर स्ट्रेस देता है, ये 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, तो ये रेफरेंस आपको पता है 0 डिग्री, ठीक है। और अगर वेव की नाम दे दे तो इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। स्टूडेंट्स, द फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द साइन वेव्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच फेजर रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द साइन वेव। ये जो लेंथ ये अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर भी अलग हो सकता है, यहाँ पर भी अलग हो सकता है, ठीक है। मान के चलो ये 5 वोल्ट है, और इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिए 7.5 मान के चलो, और ये जो है इसको मैंने 10 दे दिया, मान के चलो ये थोड़ा बड़ा है, I took it as 10, 10 वोल्ट है, ठीक है। रेड जो है वो 5 वोल्ट मैग्नीट्यूड है, ग्रीन जो है वो 7.5 है,
और ये ब्लू जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। उसको अगर मैं रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स, इफ आई विल रिप्रेजेंट इट इन डायग्राम, ठीक है, सी हियर 5 वोल्ट जो भी क्या हुआ है वो लीड किया हुआ है कितने डिग्री, पहले से शुरू हुआ है 5 वोल्ट कितने डिग्री रेफरेंस से 45 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री मान के चलते हैं, करेक्ट। और Yes, स्टूडेंट्स sir. 10 वोल्ट जो है वो क्या हुआ है, लैग किया है, बाद में स्टार्ट किया है, जो बाद में स्टार्ट किया वो लैग, तो 10 वोल्ट 60 डिग्री लैग कर रहा है, अंडरस्टूड। और ये जो नॉर्मल है ये अलोंग द लाइन है जो 0 पे है, दैट इज 7.5 वोल्ट, 0 से शुरू हुआ है ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन का ये वाला हो गया और 5 वोल्ट का ये वाला हो गया और 10 वोल्ट का ये वाला हो गया, ये सब आपको पता है, ठीक है। See here students, an alternating voltage, see, an alternating voltage E is equal to how much, 200 root 2 sin 100t, like that it is given, is connected to a 1 microfarad capacitor, उसको हमने किस पे लगाया, कैपेसिटर जिसका वैल्यू कितना है 1 microfarad, 1 microfarad capacitor through an ammeter is connected through an ammeter. What will be the reading of the ammeter? What will be the reading? What will be the reading of the ammeter? फ्रेंड्स अगर देखें यहाँ पर तो ये कितना दिया हुआ है 200√2, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है ना, तो यहाँ पर ई नॉट कितना हो जाएगा, और सोल्यूशन पे जाएंगे तो ई नॉट कितना हो जाएगा 200√2, यस और नो, है ना। और फिर ओमेगा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 100, कि ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मतलब इट इज ओमेगा। और फिर एक्सी कैसे निकालेंगे, यू नो एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, so that is 1 by omega is 100 and c is 1 microfarad means 10 to the minus 6 farad, तो अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 to the 4 ओम आ जाएगा। और आई आर एम एस अगर स्टूडेंट बात करें तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड ओनली है, जेड मतलब ओनली एक्स ही लेना होगा यहाँ पर जेड, so that is ई आर एम एस इज इक्वल टू हाउ मच ई नॉट बाई रूट टू, और जेड के बदले में ओनली एक्स ही, ठीक है, that is equal to 200√2 divided by √2 into 10 to the 4, पूरा को सॉल्व कर दो 200 by 10 to the 4, इस आ जाएगा 20 in 20 10 to minus 20 मिली एम्पियर, कर दो वैल्यू ऑफ करंट, फ्रेंड उसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, another example, find the maximum value of current, find the maximum value of current when a coil of inductance, when a coil of inductance when a coil of inductance 2 Henry is connected to 150 volt, it's connected to 150 volt and frequency is given 50 cycles per second, 50 cycles per second. Friends, let's see L कितना दिया हुआ है 2H, ये जो E वैल्यू दिया हुआ है ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है RMS वैल्यू, ठीक है, हमेशा कितना वैल्यू दिया रहता है RMS वैल्यू, और frequency is equal to how much given 50 hertz, so student XL is equal to how much, XL is equal to L omega, so that is L into 2 pi f, correct, so that is 2 into 2 into 3.14 into 50, so that is equal to 628 ohm, that is equal to 628 ohm, ये हो गया XL, and should you know RMS value IRMS is equal to what ERMS by XL,
ERMS by XL. ERMS कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है और XL कितना दिया हुआ है? 628 दिया हुआ है. So that is equal to 0.24 ampere. Right? And maximum value or peak value of current is given by IRMS. क्या है student? I max by root 2. That is I naught by root 2. So अगर I naught निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? root 2 into IRMS कर देंगे. So that is 1.414 into 0.24. So approximately that is 0.339 ampere. Friends, दिया हुआ है 0.21 Henry inductor and 12 ohm and a 12 ohm resistance and a 12 ohm resistance are connected in series. Are connected in series to a 220 volt 50 hertz. To a 220 volt 50 hertz AC source. 220 volt 50 hertz AC source. Calculate the current in the circuit and the phasor angle, students. Calculate current in the circuit and phasor angle between current and voltage and phasor angle between I and V. Students, you know, अगर solution पे जाए तो that is XL is equal to how much? Omega L. So that is equal to 2 pi FL. So that is 2 pi into 50 into 0.21. That is how much? 21 pi ohm. Okay. And student, you know, Z is equal to how much? R square plus XL square का root under. अगर वैल्यू डाल देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 21 पाई का स्क्वायर 21 pi का स्क्वायर का रूट अंडर सो विल गेट इट एज तो ये 144 प्लस 4348 दैट इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद जेड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 67.01 ओम and friends you know I is equal to V by Z correct so that is 220 divided by Z कितना है 67.02 that is equal to 3.28 ampere अगर बात करें phi की तो phi is equal to how much tan inverse of XL by R that is equal to tan inverse of 21 pi divided by 12. So student the current will lag because inductor है the applied voltage. So इसका ये मतलब है कि the current will lag the applied voltage by an angle. The current will lag the applied voltage by an angle tan inverse of 21 pi by 12. Just write it students.